Hello students, this is Ajitpal Singh from Apollo Academy Sangrur. So student, yesterday we have discussed about oxidation and reduction, and we have described the three definitions of oxidation and three definitions of reduction. Today we will discuss about two new terms known as oxidizing agent and reducing agent. So let's forget about this thing, forget about oxidation and reduction, forget about this. Let us discuss the word agent. What is an agent? Agent ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? Agent ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਭੋਪਾਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ, ਅ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ make the oxidation to happen, ठीक है बेटा। and reducing agents is what? A substance which make the reduction to happen, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਪਲਸ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ। H2 get oxidized, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, CuO get reduced, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, what is oxidizing agent? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? what is reducing agent? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ,
then copper oxide is a oxidizing agent। reducing agent कौन हो गया? reducing agent वो हो गया ਜਿਹੜਾ reduction ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। reduction ਦਾ मतलब ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। H2 is reducing agent। ठीक है, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਟਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਆਪ ਹੋਊਗਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ। ਜਮੀ ਪੁੱਠਾ ਫੰਡਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ H2 get oxidized, then it is reducing agent। copper oxide get reduced, it is a oxidizing agent। बस। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਨਾਲ ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ which substance get oxidized, which substance get reduced। ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਊ। ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ZNO ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ Z ਇੱਧਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ZN ਨਿਕਲ ਜੂ, CO2 ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ZN2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ C is 4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ZN ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, CO2 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ZN plus CO2, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਆ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਬਸ ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। Fe2O3 प्लस एल्यूमीनियम। आयरन अलग निकल जू बेटा, इनू हीट करना, आयरन अलग निकल जूगा, Al2O3 बन जू। Fe2O3 की हो रही है रिडक्शन, एल्यूमीनियम की हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन। ये किहड़ी रिएक्शन है? थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिया सी इहदा नाम है थर्माइट वेल्डिंग। तुहानूं जस्ट इन्ना की दिता होगा, तुसीं आ सारा कुछ आप ही करना। दैन बैलेंस इट, बैलेंस करने लई आपां नूं की करना पऊ? इत्थे एल्यूमीनियम ऑक्सीजन 3, इधर भी Al2O3 Fe2O3। ठीक है बेटा, इनू बैलेंस कर दो। इनू बैलेंस करन लगे चलो मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता, 2 इत्थे मैं देख के कर देना, 2 इत्थे लग जाना, 2 इत्थे लग जाना। ठीक है, चलो ये बैलेंस हो गया। बट मेन प्रॉब्लम ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Fe2O3,
रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्यूमीनियम। ऑक्सीडेशन किहदी हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है एल्यूमीनियम दी। रिडक्शन किहदी हो रही है? रिडक्शन हो रही है Fe2O3 दी। ठीक है, तो यह पूरा पूरा कंपाउंड लिखना गा, इस तरह याद करना, याद नहीं मतलब तुहानूं समझ आनी चाहिए है, क्योंकि तुहानूं क्वेश्चन इस तरह नाल पूछे जाते हैं। नैक्सट आ जाओ, H2S प्लस Cl2। ठीक है, इत्थे बेटा की होगा, इत्थे HCl अलग बन जूगा, सल्फर अलग रह जूगा, HCl बन जूगा नाल सल्फर हो जूगा। ठीक है, इस दे विच की आ हाइड्रोजन रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूवल की आ, हाइड्रोजन रिमूवल ऑक्सीडेशन। H2S got oxidized, oxidation। क्लोरीन गेट रिड्यूस, क्यों? रिडक्शन की है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन नाल ऐड हो रही है, इनू बैलेंस कर दो, 2 ला दो इत्थे। ठीक है, देन रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? H2S। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन इज ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नैक्सट आपां नूं दे रहे ने पुत्र जी ऐसियां एग्जाम्पल्स जिहदे विच जिवें Mg+O2, यू नो इट बिकम्स Mg2MgO। हुण इत्थे की हो रहा? मैगनीशियम ऑक्सीजन नाल बॉन्ड बना रही है, मतलब पहला मैगनीशियम मैगनीशियम सी, जदों ये इत्थे गई तां इहने की शो कीता? इत्थे तां Mg सीगा, जदों इत्थे गया इत्थे ने शो किया Mg2 पॉजिटिव। इहदा मतलब लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन का मतलब की हुंदा? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, इत्थे ऑक्सीजन O सी, इत्थे जाके ऑक्सीजन ने अपना की शो किया? आयनिक फॉर्म O2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब उन्हें इलैक्ट्रॉन्स गेन कर ले, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब की हो गया? O2 गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, देन Mg की ऑक्सीडेशन हुई आ तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई आ, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट ते है सारा कुछ। आपां ऑक्सीजन के रिमूवल ते देख लिया, हाइड्रोजन के एडिशन ते देख लिया, नाउ वी आर मूविंग टू इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट। इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट है, इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट तुहानूं देखना पऊ, इत्थे Mg है, इत्थे Mg2 पॉजिटिव शो कर रहा, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म च। किहड़ी फॉर्म च पुत्र? कंपाउंड फॉर्म च। कंपाउंड फॉर्म दे विच आपदा आयनिक बिहेवियर शो करूगा, कंपाउंड फॉर्म दे विच आयनिक बिहेवियर शो करू। इस तरह O2 दे विचों O शो हो रहा है, जबकि इत्थे आयनिक फॉर्म दे विच आ तां आयनिक O2 नेगेटिव होगा। 2 नेगेटिव मतलब उन्हें 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन करने का मतलब रिडक्शन, लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो नैक्सट चलते हैं। आप हुण आपां इहो जिहा कुछ देखांगे जिहदे विच ऑक्सीजन होऊगी ही नहीं। ठीक है, फिर भी इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट यूज करांगे। अगला आपां कर रहे हैं पुत्त H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl, इनू बैलेंस करो 2, है ना? क्यों? ये पता ही है भी H पॉजिटिव इधर होगा, Cl नैगेटिव इधर होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो HCl बन जाना। चलो हुण इत्थे की है? इत्थे हाइड्रोजन H की फॉर्म च है, उत्थे हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म च है। H पॉजिटिव का मतलब इन्हें की किया? लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन का मतलब हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन। H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन इत्थे की करूगा शो? क्लोरीन इत्थे करूगा Cl नेगेटिव शो। Cl नेगेटिव शो करूगा ना, बिकॉज इट इज इन कंपाउंड फॉर्म, तो Cl नेगेटिव हो जाऊगा। Cl नेगेटिव जो क्लोरीन शो करूगा पुत्र जी, तो इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किया,
ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then it is reducing agent। ठीक है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, ये चीज़ का खास ख्याल रखना आप। चलो नैक्सट होर एग्जाम्पल्स करते हैं, उत्थे भी आप सेम चीज़ां देखते हैं। एक एग्जाम्पल अपन दे रहा बेटा, कॉपर प्लस आयोडीन, ये गैस होंगी है आयोडीन, ठीक है, गैसीयस फॉर्म होंगी है। तो कॉपर शो करता 2 पॉजिटिव, आई शो करता 1 नैगेटिव, तो कंपाउंड बनू CuI ब्रैकेट 2। ठीक है, चलो यही बन गया। इत्थे की हो रहा, कॉपर इत्थे कॉपर सी, उत्थे जाके कॉपर Cu2 पॉजिटिव हो गया। 2 पॉजिटिव का मतलब उन्हें इलैक्ट्रॉन लूज करते, किनू लूज करते, आयोडीन नू लूज करते। तो लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आयोडीन ने गेन कर ले, रिडक्शन। जिहदी ऑक्सीडेशन हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। जिहदी रिडक्शन हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इत्थे की होगा, इत्थे हो Cu2 पॉजिटिव, I1 नैगेटिव। 1 नैगेटिव का मतलब इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किया, 2 पॉजिटिव मतलब इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किया, तां ही एक आयनिक कंपाउंड बनया ना। आयनिक कंपाउंड लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन ते गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन बनता, जिन्हें लॉस किया उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिन्हें गेन किया उसकी रिडक्शन होगी बेटा। चलो अगे चलिए, हूँ देखने में कॉम्बीनेशन रिएक्शन लग रही है। ठीक है, एक्चुअल दे देखने की लग रही है बेटा जी, कॉम्बीनेशन रिएक्शन। नैक्सट आ जाओ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल ना करके देखिए आप। Zn प्लस CuSO4, इत्थे की हो रहा है, इसका रिजल्ट तो तुम आप ही लिख सकते हो, बहुत सिंपल रिजल्ट आ, Cu प्लस ZnSO4। हुण तुसीं कहोगे सर ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ, पर मैं तुहानूं दस्सिया होया भी हरेक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होवे दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। किवें देखो बेटा, इत्थे Zn है, इत्थे Zn जब SO4 नाल चला गया, Zn2 पॉजिटिव बन गया है ना। इत्थे Zn सी, Zn2 पॉजिटिव बनया, वो तो आपां नूं पता लग गया रिएक्शन टाइम। ये Zn2 पॉजिटिव इधर बन गया सीगा, इधर 2 पॉजिटिव ते SO4 2 नैगेटिव हो गया सीगा, इहदे नाल चला गया सी, तां अपने कोल प्रोडक्ट ये बनिया सी। बट इत्थे कॉपर की सी, इत्थे कॉपर आपदी मैटैलिक फॉर्म च सीगा। मैटैलिक फॉर्म का मतलब आयनिक फॉर्म च नहीं सी। मैटैलिक फॉर्म का मतलब की सी, आयनिक फॉर्म च नहीं सी। इत्थे मैटैलिक फॉर्म सी, मतलब आयनिक फॉर्म च नहीं सीगा। बट आप रिएक्शन वेले मैं तुहानूं दस्सिया होया मैकेनिज्म एवें कर लेना तुसीं। हुण Zn ने की कीता, 2 इलैक्ट्रॉन लूज करते, क्योंकि इत्थे हो आपदी किहड़ी वैलेंसी शो कर रहा, Zn2 पॉजिटिव। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तां Zn दी की होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। कॉपर ने की कीता, कॉपर इत्थे किहड़ी फॉर्म दे विच एग्जिस्ट कर रहा सी, Cu2 पॉजिटिव SO2 नैगेटिव दी फॉर्म दे विच, 2 पॉजिटिव। बट जदों यह इत्थे गया, उदों ये कल्ला सिंपल Cu बन गया, मतलब इन्हें गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन किया। गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन कितों गेन कर लिया इन्हें, SO4 तो कर ले, क्योंकि SO4 ने इलैक्ट्रॉन किस तो ले ले, जिंक तो ले ले। SO4 ने आपदा पार्टनर चेंज करता, पहला कॉपर तो इलैक्ट्रॉन लए हुए सी, उन्होंने वापस करते। ठीक है, फिर जिंक कोल गया, उतों इलैक्ट्रॉन ले ले, मतलब कम SO4 कर रहा सारा। बट ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन किन्ना दी हो रही है, एक जिंक दी हो रही है, एक कॉपर दी हो रही है। कॉपर दी की होगी बेटा, रिडक्शन। हुण जिहदी ऑक्सीडेशन हुई आ वो हैगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिहदी रिडक्शन हुई आ वो हैगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, वो हैगा अपने कोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैकेनिज्म तुहानूं पता किवें चल रहा है। ठीक है, फॉर्म जदों प्रोडक्ट करना उदों तो आप इन्हों आयनिक दे विच ही वांगू प्रोडक्ट फॉर्म करना। बट जदों ये मैटैलिक फॉर्म है, मतलब इत्थे आयनिक फॉर्म च नहीं आप इनू देख रहे, बट रिएक्शन वेले इनू आयनिक फॉर्म च देखांगे। ध्यान रखियो, रिएक्शन वेले इनू आपां आयनिक फॉर्म दे विच ही देखांगे। तो बेटा इहदे नाल ही अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जिहड़ा टॉपिक आ वो कंप्लीट हुंदा। कल नूं बेटा आपां करांगे ये प्रॉपर, एक बार ध्यान नाल सारियां चीज़ां देख लिओ। ये 2
बहुत इंपॉर्टेंट लैक्चर ने क्योंकि 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ही बनता, होर किसी चों नहीं बनता। ठीक है, तो हुण आपां की करना, कल नूं अपने 2 टॉपिक ने बेटा करोजन एंड रेंसिडिटी, तो करोजन एंड रेंसिडिटी आपां कल नूं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो करोजन की आ पहलां तुसीं बहुत पढ़िया होया, छोटियां क्लासिस दे विच पढ़िया होया, पर तुसीं छोटियां क्लासिस दे विच एक चीज़ पढ़ी आ भी ऑक्सीजन नाल रिएक्ट होंदी आ जिहड़ी अपनी मैटल करदी आ। ठीक है, तो वो करोड़ हो जाती है। मैं तुहानूं इत्थे कह रहा कल्ली ऑक्सीजन नहीं हुंदी बेटा, ऑक्सीजन भी हुंदी आ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हुंदी आ, मॉइस्ट भी हुंदी आ, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस भी हुंदी आ। इन्हां सारियां चीज़ां नाल मैटल सरफेस की करदा, रिएक्ट करदा। तो आपां करोजन बारे कल नूं वधिया डिस्कस करांगे। ठीक है, नाल ही नाल आपां एक होर कंसैप्ट आ रेंसिडिटी, जिहदे करके तेल वालीआं चीज़ां चों समैल आउण लग जांदी है ना, समैली हो जाता अपना भोजन समैली हो जाता गा। ये भी देखा वो भोजन पिया पिया समैली क्यों हो जाता, दैट कंसैप्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक चीज़ हैगी रस्टिंग, रस्टिंग ते करोजन दे विच फर्क आ बेटा। रस्टिंग की आ, रस्टिंग इज द करोजन ऑफ आयरन ओनली। आयरन की जदों कल्ली करोजन हुंदी आ उहनूं आपां रस्टिंग कह दिंदे आ, वैसे रस्टिंग हरेक मैटल की हो जाती है। ठीक है, तो रस्टिंग दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट वो आऊगा क्वेश्चन, कोई एक इहो जी मैटल, ऊँ तो आपां नूं पता लग गया भी करोजन आ जिहड़ी वो सरफेस खराब कर दी आ, बट एक मैटल इस तरह की आ जिसका सरफेस खराब होने वाली ओहदी उम्र वध जाती है। ठीक है, मतलब वो करोजन बेनीफिशियल होंदी आ, एक इस तरह की मैटल आ। ठीक है, वो बारे भी आप कल डिस्कस करांगे। तो कल जो आप क्वेश्चन डिस्कस करने जोड़े पेपर के आते हैं वो इन्हों विचों ही क्वेश्चन पेपर के आउणगे। ठीक है, तो आप कल अपना चैप्टर का लास्ट लैक्चर होगा वो, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन जिहड़ियां तुहानूं मिलणगियां। करोजन नूं रोकिया किवें जा सकदा, फिर जे करोजन एक प्रॉब्लम आ तो इहनूं रोकिया किवें जा सकदा, रेंसिडिटी एक प्रॉब्लम आ तो इहनूं रोकिया किवें जा सकदा। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट करोजन एंड रेंसिडिटी, वट इज रेंसिडिटी, वट इज करोजन, वट इज रस्टिंग। ठीक है, नेम एनी मैटल whose corrosion is beneficial for us। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ डिस्कस करने ने क्योंकि कल ਦਾ अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है दैट इज corrosion and rancidity। So student, that's all for today. Thank you.